दोस्तों सबसे पहले जय श्री राम और जय हिंद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी का वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। I shudder to think that till a year back, the pseudos and the wokes in this country, along with assorted members of the Tukre Tukre gang and the Kongi Brigade and their foreign ecosystem, were coming together to try and work hard towards making Mamata Banerjee potential Prime Minister of India. Just see what Mamata Banerjee has done to Bengal, and imagine that if she was given an opportunity by this pseudo brigade, what a person with Mamata Banerjee's governance track record would do to our entire country, what she would do to Bharat. Mamata Banerjee has destroyed Bengal. She has ruined Bengal's image, ruined Bengal's social fabric, its harmony, ruined the law and order situation in Bengal, and literally, in my view, handed over the running of the state to her private mafia. We all know what happened in Sandesh Khali. Women were raped in Kolkata. A woman was raped in Kolkata. Mamata Banerjee asked, why was the woman victim out on the streets at night? Imagine the mentality. In Sandesh Khali, her mafia man and his gang mass assaults and allegedly mass rapes poor women from economically deprived backgrounds. And she stands up in the assembly and protects the men accused of her of the rape. And she attacks the women of Sandesh Khali brutally, totally insensitively. Under Mamata Banerjee, the most dirty corruption is unleashed. Apartments full of cash are found. A massive, well-known land syndicate runs in Kolkata and around with obvious government patronage. Everybody knows about it. When news channels like Republic Media Network, Republic Bangla expose her misdeeds, she has a standard technique. She gets cases filed against the network, against us. She has this habit, which is evident now. She likes to send notices to people and to reporters and to citizens. Today she is sending notices to Kunal Sarkar. She is sending notices to Dr. Goswami for speaking the truth. She is even sending notices to her own ex-MP for questioning her. And when Mamata Banerjee and her government apparatus gets desperate, she even makes her incompetent police arrest reporters. Imagine if people like Mamata Banerjee and Rahul Gandhi are to be Prime Minister. Imagine if Mamata Banerjee was to be Prime Minister. What she would have done, in my view, she would have destroyed India. Proof of this is the way in which she has absolved herself of all responsibility in the RG Kaur rape and murder case. She is the health minister, no accountability. She is the home minister, no accountability. She is the chief minister, no accountability. It's a clear cover-up. And it's clear to me and everyone else that something very big is potentially being hidden in the response to this terrible incident. That a powerful lobby could be protected. But as usual, Mamata Banerjee has decided that she is with the lobby and she is against the people. Viewers, never forget or forgive this. Never forget that at a time like this, women MPs like Mahua Maitra, who reads out those prepared scripts every time, who shows the finger on television, a person intemperate, under question, like Mahua Maitra, and a person like Sagarika Ghosh, they choose to swear by their supreme leader Mamata Banerjee. They find in this moment, when they should have been with the people, an opportunity to show their loyalty to Mamata Banerjee, even if it means deliberately disregarding the cries of help. In all these cases, from Sandesh Khali to now RG Kaur. Viewers, power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Mamata Banerjee is an embodiment of a corrupt government. Hers is, in my view, the worst ever track record any chief minister in this country has had since our independence. Only this time the people of Bengal have decided that enough is enough. And the people of Bengal, the people of Bharat, all standing solidly together
Ladies and gentlemen, the people in Bengal are fighting back. And this time, all right-thinking citizens of the country, everyone is with them. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर ये देखना बहुत अजीब सा लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने जैसे बोला है, जो असली तानाशाही, असली डिक्टेटरशिप है, जो ये 2024 का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें नरेंद्र मोदी को सब लोग डिक्टेटर बोल रहे थे ना। ये सोशल मीडिया हैंडल्स, ये फेमस यूट्यूबर्स, लिबरल यूट्यूबर्स नरेंद्र मोदी को बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी इज़ अ डिक्टेटर। और इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि डिक्टेटर नरेंद्र मोदी इज़ नॉट अ डिक्टेटर। अगर आप सही तरह देखो तो फिर डिक्टेटरशिप तो असली ममता बनर्जी का दिखाई देता है आप लोगों को, क्योंकि जो भी ममता बनर्जी के अगेंस्ट थोड़ा सा भी बोल रहा है उसको अरेस्ट करके बोल रहे हैं कि ये बंदा हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, इसको अरेस्ट करो। और इनके प्रवक्ता ही लोग ही बोल रहे हैं, ट्वीट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं ट्वीट्स, जो बंदा इनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जैसे आप लोगों को पता है वो होगा कि राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ है सागरिका घोष, वो जिन्होंने एक ट्वीट में एक उनका एक कोट भी है कि वो कभी भी एक पॉलिटिशियन से राज्यसभा सीट नहीं मांगेंगी, ऐसा एक कोट उनका था। पर इधर आके उन्होंने मांग भी लिया और उससे मांगा जिसको वो पहले बोलती थी शी इज़ अ डिक्टेटर, शी इज़ अ वुमेन हु डजंट केयर अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे वाक्य बोले थे इन्हीं लेडी ने ममता बनर्जी के बारे में। और ममता बनर्जी की पार्टी में जाके ही विलय होगी उनका। और यही दिखाई देता है आप लोगों को, ये जो पूरा जो पार्टी है ना टीएमसी, ये अपने आप को बिल्कुल लिबरल पार्टी, जो दूसरे इनके प्रदेश के बाहर जो भी बीजेपी प्रदेश में जो भी ख़राब होता है ना वुमेंस के अगेंस्ट, तो फिर ये इनके जो पार्टी लीडर्स हैं वो जाके उधर प्रोटेस्ट करते हैं, उधर अपना फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हैं। और इनके लीडर्स तो बिल्कुल प्रिटेंशंस होते हैं, जैसे महुआ मोइत्रा और भी बहुत सारे लीडर्स हैं इनके, वो तो बिल्कुल अपने आप को फेमिनिस्ट, प्रोग्रेसिव, लिबरल ऐसा उपाधि दे के रखे हैं। और इधर आके जब इनके स्टेट में कुछ भी गलती होती है, संदेश खाली होता है, संदेश खाली को तो मारो, वो तो छोड़ भी दो, उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा बोलते भी नहीं है। पर ये जो हुआ है, और जो अर्बन एलीट है, भद्र लोग जिसको बोलते हैं बंगाल में, वो एलीट अभी मिडिल क्लास एलीट जो है वो उधर आके प्रोटेस्ट कर रहा है। उन लोगों को भी ये अंदर डाल रहे हैं जो फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। ईस्ट कोलकाता नाम का एक टीम है, ईस्ट बंगाल ईस्ट कोलकाता नाम का टीम है, और एक मोहन बगान है, मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल नाम का एक टीम है, फुटबॉल टीम। वो दोनों बहुत बड़ा राइवलरी है, बिटर राइवलरी है। वो भी उधर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना वॉइस रेस कर रहे हैं। तो फिर उनको भी लाठी चार्ज करके अंदर डाल रहे हैं। और उनके अंदर जो है उनके फैमिली वाले लोग भी बोल रही है, जिस लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट और रेप हुआ था, कलकत्ता की जो लेडी हैं, उनकी फैमिली, उनकी मदर, उनके फादर भी बोल रहे हैं कि वाई इज शी डूइंग दिस, क्यों ये जो उधर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कर्ब कर रही हैं, क्यों उनको डर लग रहा है इस प्रोटेस्ट में। इस प्रोटेस्ट में इसलिए डर लग रहा है क्योंकि पहली बार है बहुत सालों के बाद कि उधर का जो एलीट है, एलीट मतलब मिडिल क्लास, जो यूजुअली चुप रहता है और जो भी ममता बनर्जी या CPIM गलती करता है उस पर बात नहीं करता है, पर इधर आके बात किया, इधर आके अपना वॉइस रेस किया। ममता बनर्जी डजंट लाइक इट। और इनके जो इंडी अलायंस के लोग हैं वो भी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए ही उनके जो एफिलिएटेड यूट्यूबर्स हैं, जैसे ध्रुव राठी हो, रवीश कुमार हो, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इसके ऊपर। उनको तो अभी भी मोदी तानाशाह है। मोदी ने ये जो लैटरल एंट्री के बारे में, राहुल गांधी को क्यों फ्रंट सीट नहीं दिया, जो इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच हो रहा था उसमें फ्रंट सीट को नहीं दिया, इसके ऊपर ही अपना वीडियोस बना रहे हैं। पर इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि इनको कोई इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि पूरा इंसेंटिव इनको मोदी को अटैक करने में और
अपना एक इमेज बना के रखा है और एक साइलोस बना के रखा है। उस साइलोस के अंदर रहना चाहते हैं, साइलोस के बाहर नहीं रहना चाहते। और वो साइलोस है कि आई एम मोदी विरोधी बाय बर्थ और मैं मोदी विरोधी रहूँगा। यही इनका एक आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी के बाहर जाने की जो भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये अजीत अंजुम ने बोला था कि अगर क्वेश्चन करते हैं तो फिर मामा मोहित्रो जो है वो ब्लॉक कर देते हैं इन्हें, तो फिर उनके अगेंस्ट बोला था और वीडियोस भी डाला था। उस वीडियोस में कोई व्यूज़ नहीं आए, तो फिर शी रिवर्टेड बैक टू द यूजुअल टैक्टिक्स ऑफ अटैकिंग नरेंद्र मोदी। और वो अटैक का ही टैक्टिक्स काम करता है इनके पास और दूसरे का काम नहीं करता है, तो फिर वही कर रहे हैं लोग। अभी देखते हैं क्या ये जो अर्नब गोस्वामी ने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाला है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या दम है क्या नहीं है वो आप तय कर सकते हैं। मेरे को तो लगता है सही बोला है। फिर देखते हैं क्या होता है दोस्तों। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ काली। और इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की है, वो भी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है।